Good evening, dear students. This is Sheikh Shakir, and I welcome you all in this special course in which we are doing chapter number 8, class 10th, How Do Organisms Reproduce, in which we are discussing the different methods of reproduction followed by different organisms. And in the previous lectures, we have completed a definition of reproduction and asexual reproduction and few methods of asexual reproduction. And in today's lecture, we will continue with the modes of asexual reproduction and we'll discuss two more modes of asexual reproduction. First is spore formation, second is vegetative propagation. So let us start our today's session with spore formation. Spores formation, let's first of all see what is a spore. ठीक है, जैसे हम सीड को जमीन में लगाते हैं वो एक नया प्लांट डेवलप होके आता है, ठीक है, बट सीड इज फॉर्म इन द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. अगर हम स्पोर की बात करेंगे व्हाट इज अ स्पोर. स्पोर्स आर माइन्यूट सिंगल सेल्ड thick walled bodies like this. Spores are minute single celled thick walled bodies. Why are they thick walled? Because they have to stand sometimes unfavorable conditions, so they should be able to withstand the unfavorable conditions. That is why they are thick walled. ठीक है, they are single celled which after germination on a suitable substratum develop into a new individual. सुपोर एक वो चीज है जो सिंगल सेल होता है और जिसमें थिक वॉल होता है. थिक वॉल इसलिए होता है sometimes it may get in the unfavorable conditions, so the spore should be able to withstand the unfavorable conditions. जब ये स्पोर किसी suitable substratum पे गिर जाता है, I mean where it gets the all the these things responsible for germination, तो ये germinate हो जाता है and it develops into a new plant or new organism. ठीक है, so next question is where are these spores formed. ये spores बनते कहाँ पर है और बनते कैसे हैं. How are these spores are formed and where are these spores formed. अगर आप इस डायग्राम में देख सकते हो, it's a fungus because spore formation is a method of reproduction mostly in fungus. It is followed by fungus. This is the body of a fungus called a rhizopus. ठीक है, the body of a fungus is filamentous. It is having number of filamentous. These filamentous are called hyphae, and these root-like structures are called rhizoids, which help us in anchorage. As far as hyphae are concerned, यहाँ पर आप देख सकते हो किसी hyphae पे यहाँ पे बना हुआ है आगे circular structure, ये sac-like structure. ठीक है, the hyphae on which this sac-like structure develops, it is called sporangiophores. That means sporangiophores are the hyphae on which develops a ball-like structure called जिसको हम कहते हैं sporangia. ये आप यहाँ पर देख सकते हो. This circular structure is sporangia. This circular structure is again a sporangia. यहाँ पर भी आप देख सकते हो this is a sporangia. ये सारी sporangia है. The sporangia are places where the spore formation takes place. What are sporangiophores? Sporangiophores are hyphae on which sporangia develop. ठीक है, अब इस स्पोरेंजिया में कैसे डेवलप हो जाते हैं स्पोर्स. इसमें बेसिकली एक सेल पहले होती है. ठीक है, उस सेल में माइटोटिक डिविजन्स होते हैं, 2 बन जाते हैं, 2 से 4 बन जाते हैं, 4 से 8 बन जाते हैं, 8 से 16 बन जाते हैं. इस तरह से सेल्स का नंबर बढ़ जाता है. ठीक है, जब ये स्पोर्स मैच्योर हो जाते हैं, दिस स्पोरेंजियम बर्स्ट्स, ये बर्स्ट हो जाता है. व्हेन इट बर्स्ट्स, these spores are released into the external environment. ये spores बाहर आ जाते हैं into the external environment. These spores are lightweight, so they are carried either by water, या तो उनको water अपने साथ लेके जाता है, या wind लेके जाता है, या air लेके जाता है. That means they are carried to different places by air, water or wind. ठीक है, so after getting the substratum, after getting the suitable conditions, these spores germinate, and when they germinate, they produce the new organism. ठीक है, so why कहाँ पर आपको देखने को मिलेगा ये spore formation. Mostly मैंने पहले कहा it is observed in fungi. In fungi, this is the major method of asexual reproduction, and you will also find in some algae like Chlamydomonas. ठीक है, इस तरह से some protists you will find this is some Monoranas also. ठीक है,
Now, the spores are of different types. In spores के different types on the basis of motility, whether a spore is able to move or not. इसके दो types है. First जो होता है जिसको हम कहते हैं zoospore, and second जो होता है जिसको हम कहते हैं apelinospore. Zoospore is a spore which is having a locomotory organ जिसको हम कहते हैं flagella. Like this, it's having two flagella which helps them in movement. ठीक है. So the spores which are having flagella which are motile, we call those spores as zoospores. उसको हम कहते हैं zoospores. Next type of spores is apelinospores. The spores which lacks the locomotory organ, जिनके पास locomotory organ नहीं होता है, they are non-motile. When they are non-motile, they are called apelinospores. तो उन spores को हम कहते हैं apelinospores. Finally, सारे spores they after getting the proper substratum, proper conditions, favorable conditions, they germinate. When they germinate, they produce the new organism. This is the method of spore formation, and mostly आपको ये fungi में देखने को मिलेगा. After that, some algae, some protists, and some bacteria, that is monoranas. This method is also followed as a method of asexual reproduction. I hope कि spore formation आपको clear हुआ होगा. Next one is the vegetative propagation. वेजिटेटिव प्रोपगेशन में क्या है, बेसिक हम क्या करते हैं, आमतौर पर जो भी प्लांट होता है उसके सीड्स बन जाते हैं. वी सो द सीड्स इन द सॉइल एंड सॉइल द सीड्स डेवलप इनटू न्यू प्लांट्स. बट देयर आर सम प्लांट्स व्हिच डू नॉट हैव सीड्स, व्हिच डू नॉट प्रोड्यूस द सीड्स. कुछ प्लांट्स होते हैं दे डू नॉट हैव द एबिलिटी और कैपेसिटी टू प्रोड्यूस द सीड्स. सो हाउ दोज प्लांट्स रिप्रोड्यूस, वो प्लांट्स कैसे रिप्रोड्यूस करेंगे. आपको पता है प्लांट के पास डिफरेंट वेजिटेटिव पार्ट्स होते हैं. वेजिटेटिव पार्ट्स का मतलब है उसके पास रूट्स होगा, उसके पास स्टेम होगा, उसके पास ब्रांचेस होंगे, उसके पास बड्स होंगे, उसके पास लीव्स होंगे. सीड्स इसमें नहीं आएगा, या आप यहाँ पर कट कर दीजिए. तो ये वेजिटेटिव पार्ट्स लाइक रूट्स, स्टेम्स, बड्स, ब्रांचेस, लीव्स, ये प्लांट के वेजिटेटिव पार्ट्स होते हैं. जिस मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन में इन पार्ट्स का यूज करेंगे फॉर प्रोडक्शन ऑफ न्यू ऑर्गेनिजम्स, दैट मेथड ऑफ asexual reproduction is called a vegetative propagation. That means it is mostly followed in the flowering plants. So when in this method in which a new plants are produced from the parts other than seeds, यहाँ पर भी नया प्लांट बनेगा बट कहाँ से, वो सीड से नहीं बनेगा बट अदर देन सीड्स. अदर देन सीड्स किस पार्ट से, वेजिटेटिव पार्ट से. वेजिटेटिव पार्ट मीन्स रूट्स, स्टेम्स, लीव्स, बड्स फॉर्म्ड ऑन द पेरेंट बॉडी. सो जब हम उनको वहां से लेके काटते हैं, रूट को, स्टेम को, ब्रांच को, बड को, दैट डेवलप्स इनटू ए न्यू इंडिविजुअल. दैट मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन इज कॉल्ड वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन. नाउ vegetative reproduction is only method of reproduction in those plants which do not produce seeds. जैसे मैंने पहले ही कहा, जो प्लांट सीड्स प्रोड्यूस नहीं करते, जिसमें कि बनाना आता है, जिसमें कि सीडलेस ऑरेंजेस आते हैं, who have lost the capacity to produce seeds. जब उनके पास सीड्स प्रोड्यूस करने की कैपेसिटी नहीं है, so how they will reproduce? They will reproduce with the help of vegetative propagation. They will use stem, they will use root, they will use bud, they will use leaf as a means of propagating their bodies. ठीक है. नेक्स्ट इज जो हम वेजिटेटिव प्रोपगेशन, एज वेजिटेटिव प्रोपगेशन इज ए मेथड ऑफ asexual reproduction, and in asexual reproduction we know that the new individuals or new offsprings are genetically as well as morphologically similar to their parents, so they are called clones. So again in vegetative reproduction similar individuals are formed which are genetically as well as morphologically similar to their parents. We call them as clones. ठीक है. Now this vegetative reproduction is of two methods. First is the natural method of this reproduction. Second is the artificial method of reproduction. Natural method of vegetative propagation means in this method we will use some parts which are naturally formed on a plant body, and naturally they detach from the parent body, and naturally they will develop into new plants. ठीक है. That is the natural method of reproduction. Second one is the artificial method of reproduction. Is that method of reproduction which are developed by plant growers and horticulturists, जिसमें human का interference जरूर लगता है. Humans के interference के intervention के बगैर वो नहीं हो सकता है. उनको हम artificial methods कहते हैं.
So let us discuss these methods one by one. First, we will take the natural methods of vegetative propagation. तो वही मैंने जो पहले ही कहा कि वेजिटेटिव पार्ट्स विल नेचुरली डिटैच फ्रॉम द पेरेंट बॉडी एंड विल डेवलप इनटू ए न्यू प्लांट्स. तो नेचुरल मेथड्स में किस किस पार्ट से नया प्लांट बन सकता है? फर्स्ट वन इज द बाय रूट्स. किसी में नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपगेशन होता है विद द हेल्प ऑफ रूट्स. ठीक है, यू नो देयर इज अ प्लांट दैट इज कॉल्ड स्वीट पोटैटो. स्वीट पोटैटो में जो रूट्स होते हैं, ठीक है, स्वोलन इस तरह से रूट्स होते हैं. On the roots there are present some small eye-like structures. We call them as bud. ठीक है, this is called, for example, this is a bud present on the root of the sweet potato, and from this bud, when we sow this root in the soil, then when we place this inside the soil, this bud develops into a small leaflet that is called the leafy shoot. ठीक है, and below this bud some roots develop from this root, but adventitious roots, छोटे छोटे यहाँ पर adventitious roots निकल आते हैं. And this helps us in the absorption of different materials from the soil. So this sapling later on becomes a big plant. ठीक है, यही फिर प्लांट बन जाता है. तो इसमें हमने क्या किया? रूट का यूज किया. ठीक, that means buds present on roots of some plants develop into new plants and they develop adventitious roots below. What is an adventitious root? And a root which develops from parts other than radical. जो ट्रू रूट होता है वो डेवलप हो जाता है रेडिकल से. जो एडवेंचरस रूट होता है वो रेडिकल से नहीं बनता है, वो अदर देन पार्ट्स, वो ब्रांच पे बन सकता है, स्टेम पे बन सकता है, कहीं पे भी बन सकता है, बट रेडिकल से नहीं बन सकता है. तो ये किस में देखो, जैसे मैंने पहले ही कहा, वी कैन सी दिस टाइप ऑफ प्रोपगेशन इन स्वीट पोटैटो, इन दहेलिया, in Tinospora. In these plants, yeah, these plants propagate with the help of roots. Next one is there are some plants which are having underground stems. One stem is the stem that is present outside is called the that's present out. One stem is present outside the soil, above the surface of soil, and another type of stem is present inside the soil. That is called underground stem. ठीक है, that is modified stem also. ठीक है, तो उन मॉडिफाइड स्टेम्स के डिफरेंट टाइप्स है. उसमें से जो पहला टाइप है जिसको हम कहते हैं सकर्स. ठीक है, sucker is a stem, it is not a root. What is the basic property of a stem? Stem is having nodes and internodes. What are nodes and internodes? Like this, if this is a stem, say for example this is a node, this is another node, this is another node. This place is called node, जहाँ से branch, जहाँ से leaf उठता है, और the space between the two nodes like this, it is called internode. और जिसमें ये होगा this, उसको हम कहते हैं stem, और इनमें भी ये stem होता है, but they are present inside the soil. That is why we call them as underground stems. The first type of underground stem is suckers. Sucker is a stem that is present inside the soil, but it is having from these nodes small leaflets can develop, and adventitious roots also develop, which develop finally develop into a new plant. जैसे कि आपने देखा होगा क्राइसेंथियम में होता है. Second type of underground stem is rhizome. Rhizome आपने सबने देखा होगा, it is present in जिंगर. जिंगर आपको अदरक जिसको हम कहते हैं, जो हम एज ए स्पाइस भी यूज करते हैं. इस तरह से इरेगुलर स्ट्रक्चर्स होते हैं जिंगर की. बट ऑन द जिंगर देयर आर प्रेजेंट दीज नोड्स, एंड ऑन द नोड्स स्मॉल लीफी शूट्स डेवलप व्हेन वी प्लेस दिस इन सॉइल. जब हम इसको सॉइल में रखते हैं, यहाँ से स्मॉल लीफी शूट्स डेवलप हो जाते हैं और एडवेंचरस रूट्स डेवलप हो जाते हैं. ठीक है, these leafy shoots develop into new plants. इसी तरह से टर्मेरिक में भी आप ये rhizomes देख सकते हो. Next one is corymbus. It is another type of underground stem. जैसे कि आपने बनाना में देखा होगा, ग्लैडुलस में देखा होगा. इसको भी जब हम प्लेस करते हैं सॉइल में, तो ये नया प्लांट बना लेती है. Next one is bulbous. Bulbous आपने सबने देखे होंगे, आपने ओनियन देखा होगा. ओनियन इस तरह का होता है. ठीक है, तो इसके नीचे यहाँ पर क्या हो जाते हैं डेवलप, एडवेंचरस रूट्स. ठीक है, ऊपर से क्या हो जाता है, लीफी शूट बन जाता है.
ठीक है, दिस इज कॉल्ड द बल्ब, इसको हम कहते हैं बल्ब। ये किसने में देखा होगा आपने, ओनियन में देखा होगा, गार्लिक में देखा होगा आपने, तो उसमें बल्ब उसके थ्रू, बल्ब इज अ टाइप ऑफ अंडरग्राउंड स्टेम। व्हेन वी प्लेस दिस बल्ब इनसाइड द सॉइल, इट डेवलप्स इनटू अ न्यू प्लांट, ठीक है। And next one is the tuber. It is another type of underground stem. Tubers you have seen in potato. For example, this is a potato. There are present some eye-like structures. We call them as buds. ठीक है. If you place this potato inside the soil, this bud will develop into leafy shoots, and adventitious roots will also develop from this, and this will become a new plant. ठीक है. So this is how we can propagate the plants with the help of underground stems. ठीक है. Now we can also propagate the plant naturally by leaves also. There is a plant that is called ब्रायोफिलम। ब्रायोफिलम के जो लीव्स होते हैं वो इस तरह से, बट लीव्स के मार्जिन्स पे, लीव्स की एजेस पे कुछ बड्स बन जाते हैं। जब वो बड्स अपने इस पेरेंट लीफ से डिटैच हो जाते हैं, दीज बड्स डेवलप इनटू ए न्यू प्लांट, ठीक है, क्योंकि वहां पर एडवेंचरस रूट्स भी निकल आते हैं। जब ये गिर जाता है, ये सॉइल पे गिर जाता है और ये सॉइल पे नया प्लांट बना लेता है, ठीक है। तो दिस मेथड you will see in the bryophyllum. Bryophyllum this propagates with the help of leaves, because on the leaves, edges of the leaves, small buds, adventitious buds develop on the leaves, which after detachment from the parent plant develop into a new plant. I hope कि natural methods are clear now. Next method is the man-made methods developed by plant growers. ठीक है, जो प्लांट ग्रोवर्स ने डेवलप किए हैं या हार्टिकल्चरिस्टिस्ट ने डेवलप किए हुए हैं, ठीक है। उसमें सबसे पहला जो मेथड है कटिंग है। आप सब ने देखा होगा, प्लांट का एक ब्रांच काट लो, वो जमीन में लगा लो, ठीक है। आफ्टर सम टाइम इट डेवलप्स इनटू ए न्यू प्लांट, बिकॉज दिस कटिंग डेवलप्स रूट्स इनसाइड द सॉइल, देन दिस कटिंग बिकम्स ए न्यू प्लांट। आपको क्या करना है, यू हैव टू स्मॉल पीसेस ऑफ प्लांट ऑर्गन्स आपको लाने हैं। कौन कौन सा पार्ट ला सकते हो आप, स्टेम की कटिंग भी ला सकते हो आप, स्टेम काट के, रूट की कटिंग भी ला सकते हो आप, या लीव की कटिंग भी ला सकते हो आप, ठीक है। उन कटेड पार्ट्स को आपको नेचुरल पोजीशन में सॉइल में लगाना है। When you will place these parts in the soil, after some time they will develop into a new plant. This is called cutting. या आप लीफ कटिंग भी कर सकते हो, जैसे कि बिग्नोनिया में ये हो सकता है कि लीफ, जैसे आप इस डायग्राम में भी देख सकते हो, आपने ये लीफ काट दिया, फिर आपने अपने पॉट में रख दिया जिसमें सॉइल रखी आपने, इट विल डेवलप इनटू अ न्यू प्लांट यहाँ पर सॉरी, या ब्रायोफिलम में भी ऐसा पॉसिबल है। रूट कटिंग किस में आप देखी होगी आपने, जैसे टर्मेरिड है, इमली का प्लांट है, साइट्रॉन है, इन प्लांट्स में रूट्स को कट करके, जैसे आप इस डायग्राम में देख सकते हो, आपने यहाँ पर रूट को कट किया, उस रूट को हमने जमीन के अंदर रख लिया, उस बड से फिर निकला नया, यहाँ पर निकलेगा नया प्लांट और नीचे रूट्स निकल आएंगे इसके, और वी विल गेट ए न्यू प्लांट। और नेक्स्ट वन इज स्टेम कटिंग। अगर आपको किसी प्लांट का स्टेम काट के उसको प्रोपोगेट करना है, आपको एटलीस्ट 20 to 30 सेंटीमीटर स्टेम की कटिंग लानी है, ठीक है। देन यू हैव टू प्लेस दैट कटिंग इन द नेचुरल पोजीशन इनसाइड द सॉइल। सो आफ्टर सम टाइम इट विल डेवलप रूट्स इनसाइड द सॉइल, एंड इट विल डेवलप लीव्स आउटसाइड द अबव द सरफेस, एंड इट विल बिकम ए न्यू प्लांट। जैसे आपने रोज प्लांट में देखा होगा, ये ग्रेप्स में हो सकता है, शुगर केन प्लांट में ये मेथड पॉसिबल है। आई होप कि कटिंग आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट वन इज द लेयरिंग, ठीक है। लेयरिंग is another method of asexual reproduction, but it is artificial method developed by plant growers or horticulturists, ठीक है। इसमें क्या करते हैं हम, जो पेरेंट प्लांट होता है उसकी जो ब्रांचेस होती है, the branches of the parent plant the branches of the parent plant are artificially induced to produce roots. पेरेंट प्लांट जो है उसकी जो ब्रांचेस हैं उनको हम आर्टिफिशियली इंड्यूस करते हैं टू प्रोड्यूस द रूट्स। व्हेन दे प्रोड्यूस रूट्स वी कट देम फ्रॉम द पेरेंट प्लांट एंड दे डेवलप इनटू अ न्यू प्लांट। ये हम कैसे कर सकते हैं, वी कैन डू दिस इन बाय टू वेज। फर्स्ट इज द माउंट लेयरिंग। माउंट लेयरिंग का क्या मतलब है, those plants like herbaceous plants or the plants which are having branches very close to the surface,
जिनकी ब्रांचेस वेरी क्लोज टू द सरफेस होती है। आपको क्या करना है, यू हैव टू प्लेस ए पार्ट ऑफ द ब्रांच विच इज स्टिल अटैच टू द पेरेंट प्लांट इनसाइड द सॉइल। आपको पेरेंट प्लांट की जो बड़ी ब्रांच है उसको आपको नीचे लेके आना है, फिर उसको जमीन के अंदर उसका आधा पार्ट दबाना है। ठीक है, जो पार्ट आप जमीन के अंदर दबाओगे उसमें एक थोड़ा सा जख्म देना है, थोड़ा सा बारक उठाना है, उसमें कॉर्क उठाना है उसमें से। जब आप उठाओगे उसको एक क्लिप लगाना है ताकि वो जमीन में बंद रहे। ठीक है, और उसके जो ऊपर उस जमीन वाले पार्ट में जो लीव्स होंगे वो आपको हटाने होंगे। ठीक, देन यू हैव टू पुट द सॉइल ओवर दिस ब्रांच। After some time, after few days, after 15 days at one month, you will see this the injured part of the plant inside branch inside the soil will develop adventitious roots. It will develop adventitious roots here, you can see in the diagram. So then you can cut this branch from the parent plant and displace this branch in the soil. This will develop into a new plant. This is called mount layering. करना क्या है आपको माउंट लेयरिंग में, कि जो पेरेंट प्लांट है उसकी जो ब्रांच है दैट इज वेरी क्लोज टू द सरफेस, यू हैव टू प्लेस अ पार्ट ऑफ द branch of the plant inside the soil and cover this with a soil. First you have to make a cut on the branch by removing the bark of this branch. आपको वहाँ पर करना, then clip this inside the soil. कुछ देर के बाद उस branch पे roots निकल आएंगे, then you can cut this branch from the parent plant and this will develop into a new plant. This is called the mount layering. तो यहाँ पर क्या होगा, वायर यू कैन सी दिस, स्ट्रॉबेरी में ऐसा हो सकता है, रास्पबेरी में ऐसा हो सकता है, जैस्मीन कैन बी प्रोपगेटेड बाय माउंट लेयरिंग। ठीक है, यहाँ पर आप डायग्राम्स में देख सकते हो। नेक्स्ट मेथड ऑफ दिस layering is air layering, because there are some plants which do not have branches very close to the surface. अब वो plants है जिनकी branches close to surface नहीं होती, जैसे कि shrubs and trees होते हैं, उनकी बहुत ऊपर होती है branches, उनमें आप माउंट लेयरिंग नहीं कर सकते हैं। तो उनमें आप क्या करोगे, जो पेरेंट प्लांट होगा, फॉर एग्जांपल ये यहाँ पर डायग्राम में देख सकते हो, दिस इज ए पेरेंट प्लांट। ठीक है, दिस इज ए पेरेंट प्लांट एंड दिस इज द ब्रांच ऑफ द पेरेंट प्लांट। यू हैव टू डू वन थिंग, आपको क्या करना है, इस पेरेंट प्लांट की इस ब्रांच का थोड़ा सा एक रिंग ऑफ कार्क यहाँ से रिमूव करना है। ठीक है, इसका जो कारक होता है ऊपर उसको हटाना है, मतलब इसको जख्म देना है वहां पर। जब आप इसको जख्म दोगे, देन यू हैव टू कवर दिस इंजर्ड पोर्शन विद सॉइल। ठीक है, फिर उसको सॉइल से कौन सी सॉइल, ग्राफ्टिंग में जो हम यूज करते हैं। ठीक, देन यू हैव टू कवर दिस होल स्ट्रक्चर विद द हेल्प ऑफ अ रैपर और पॉलीथीन बैग। ठीक है, पॉलीथीन रैपर से इसको रैप करना है। जब आप इसको रैप करोगे, ये जो पूरा स्ट्रक्चर यहाँ पर बन गया, ये सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर, इसको आप कहते हैं गूटी, GOOTE, इसको आप कहते हैं गूटी। व्हाट इज गूटी? द स्ट्रक्चर फॉर्मड व्हाइल डूइंग एयर लेयरिंग। जो एयर लेयरिंग के दौरान एक स्ट्रक्चर बन जाता है ब्रांच पे। कैसे बनता है? सबसे पहले हम जो ब्रांच होती है पेरेंट प्लांट की, उसमें एक रिंग ऑफ कॉर्क निकाल देते हैं, देन वी कवर दिस विद द हेल्प ऑफ अ सॉइल, देन वी रैप दिस होल स्ट्रक्चर विद द हेल्प ऑफ अ पॉलीथीन बैग। द स्ट्रक्चर सो फॉर्मड इज कॉल्ड ए गूटी। ठीक है, तो क्या होगा, आफ्टर 1 मंथ और 2 मंथ्स, ये जो रैपिड पोर्शन है जो ब्रांच का आपने इस पॉलीथीन से कवर कर रखा है, इसके अंदर जहां पर आपने वो कॉर्क निकाला था, वहां से छोटे छोटे रूट्स निकल आएंगे इस तरह से इनसाइड दिस गूटी। देन यू कैन डू वन थिंग, यू कैन कट दिस ब्रांच फ्रॉम द पेरेंट प्लांट एंड प्लेस दिस इनसाइड द सॉइल। उसको आप फिर से सॉइल में लगाओगे, जो रूट्स वाले पार्ट सॉइल में लगाओगे और ये नया प्लांट बन जाएगा। दिस इज हाउ वी कैन डू द एयर लेयरिंग। तो ये किस में करते हैं हम? श्रब्स और ट्रीज में, क्योंकि उनमें ब्रांचेस बहुत ऊपर होती हैं, उनमें हम माउंट लेयरिंग नहीं कर सकते। जैसे कि ऑरेंज प्लांट है, लेमन प्लांट है, इन प्लांट्स में एयर लेयरिंग के थ्रू प्रोपगेट कर सकते हैं। आई होप एयर लेयरिंग आपको समझ में आ गया। नेक्स्ट मेथड इज द ग्राफ्टिंग, is the most familiar method of vegetative propagation to gardeners. In this method हम क्या करते हैं, हम दो plants के दो parts लाते हैं इसमें। We get two parts of two different plants। ठीक है, for example एक plant है यहाँ पर, ये rooted part of the plant। ठीक है, ये एक plant है, मैं इसका tip काट देता हूँ।
टॉप वाला पोर्शन काट देता हूँ, तो ये ऐसा बन जाता। फिर दूसरा प्लांट है यहाँ पर जिसकी प्रोडक्शन बहुत अच्छी है, उसकी मैं एक छोटी सी ट्विग लाता हूँ, ठीक है, और इन दोनों को जोड़ता हूँ, फिर यहाँ पर इसको जोड़ता हूँ। These will develop as a one plant. This is called a grafting. ठीक है, so in this method two parts of a different plants are joined in such a way that they grow as one plant. वो grow करते हैं as a one plant. ठीक है, तो इसमें दो चीजें हम यूज कर लेते हैं। क्या क्या करते हैं? एक करते हैं हम, ये इस डायग्राम में देख लो आप, ये जो रूटेड पार्ट ऑफ द रूटेड प्लांट, जो एक प्लांट होता है जो रूटेड प्लांट होता है, जिसको हम टॉप काट देते हैं और फिर बीच में एक सेक्शन देते हैं उसको, जहां पर हम दूसरे प्लांट का पार्ट डालते हैं। ये जो रूटेड पार्ट ऑफ द प्लांट होता है इसको हम कहते हैं स्टॉक, STOCK, इसको हम कहते हैं स्टॉक। दिस इज कॉल्ड स्टॉक। और जो ट्विग आपने दूसरे प्लांट से लाई है उसको आप कहते हैं सीकान, उसको आप कहते हैं सीकान। स्टॉक और सीकान को आप जोड़ते हो, क्या करते हो, स्टॉक में आप एक सेक्शन देते हो, वी सेक्शन, और उसमें भी आप एक वेज शेप्ड कट डालते हो सीकान में, फिर इसमें इनको फिक्स कर लेते हैं, ऊपर से आप ग्राफ्टिंग सॉइल से इसको कवर कर लेते हैं, फिर रैप कर देते हैं, ठीक है, और आफ्टर सम टाइम दिस विल डेवलप, दिस होल स्ट्रक्चर विल डेवलप इनटू ए न्यू प्लांट। ये एक प्लांट एज वन प्लांट विल ग्रो एज ए वन प्लांट, ठीक है। दिस इज हाउ वी कैन डू द ग्राफ्टिंग। यहाँ पर भी आप इस बड़ी फिगर में देख सकते हो, ये स्टॉक है और ये सीकान है। नाउ दे आर डेवलपिंग एज ए वन प्लांट। लेकिन एक चीज आपको यहाँ पर याद रखना है, आप किसी भी प्लांट में नहीं कर सकते, आपको डाइकोटिलेडोनस प्लांट्स में करना है, हैविंग द वास्कुलर सिस्टम, क्योंकि जिनमें वास्कुलर सिस्टम नहीं होगा तो अगर आप उसको काट देंगे वो प्लांट वैसे ही मर जाएगा। इसलिए वास्कुलर कैम्बियम होना चाहिए, उसमें वास्कुलर सिस्टम होना चाहिए, उसमें वो बड़ा प्लांट होना चाहिए, ताकि जब आप उसको काटो तो वो बर्दाश्त कर सके। अगर वो बर्दाश्त ही ना कर सके तो वो प्लांट ही खत्म हो जाएगा। दूसरी चीज, जो आप स्टॉक लाते हो, स्टॉक आपको कोशिश करनी है इट शुड बी फ्रॉम द वाइल्ड वैरायटी, बिकॉज इसमें वाटर रिटेंशन की ज्यादा होता है, वाटर एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी ज्यादा होती है और ये डिजीज रेजिस्टेंट होता है, ठीक है। और सीकान जो लाना है आपको, ये आपको उस वैरायटी से लाना है जिसमें ज्यादा प्रोडक्शन होगी, डिजीज फ्री होगा, अच्छी अच्छी क्वालिटीज होंगी उसमें, तो दीज क्वालिटीज विल बी मिक्सड विद द क्वालिटी ऑफ द स्टॉक एंड इट विल बिकम ए वेरी फ्रूटफुल प्लांट, ठीक है। दिस इज हाउ वी कैन डू द process of grafting. You can do this in mango plant, in roses, in pear plant, in apple plant. You can do the method of grafting as a method of propagation. I hope कि आपको समझ में आ गया। नेक्स्ट मेथड है जो टिश्यू कल्चर। अभी तक जो वेजिटेटिव प्रोपगेशन में हमने देखा, हम प्लांट का एक पार्ट लाते थे, स्टेम लाते थे, रूट लाते थे, उसकी ब्रांच लाते थे, उसको जमीन में लगा के एक नया प्लांट बना लेते थे। लेकिन अब हम प्लांट का पूरा पार्ट नहीं लाएंगे, हम प्लांट की कुछ सेल्स लाएंगे या कुछ टिश्यूज लाएंगे, ठीक है। हम प्लांट के जो ग्रोइंग टिप्स होते हैं वहां से कुछ सेल्स लाएंगे या टिश्यूज लाएंगे, उनको एक आर्टिफिशियल कल्चर मीडियम में रखेंगे, ठीक है। सो इन टिश्यू कल्चर वी गेट द सेल्स आर टिश्यूज फ्रॉम द ग्रोइंग टिप्स ऑफ द प्लांट्स। क्या जो ग्रोइंग टिप होता है वहां मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होता है। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू हैज द एबिलिटी टू डिवाइड, ठीक है। जब आप उस सेल को लाओगे देन यू हैव टू प्लेस दैट सेल इन द कल्चर मीडिया। फॉर एग्जांपल इस डायग्राम में ये कल्चर मीडिया है। हाँ, उस कल्चर मीडियम में उस सेल को क्या मिलेगा? इन द कल्चर मीडियम वी विल प्रोवाइड द सेल विद द एनवायरनमेंट व्हिच हेल्प द सेल इन रिप्रोडक्शन। उसकी वजह से सेल रिप्रोडक्शन करेगी। After some time, this cell will reproduce and will divide many times and will produce a mass of cells. This mass of cells is called callus. ये यहाँ पर बन गया callus. करना क्या है? सबसे पहले प्लांट की ग्रोइंग टिप से आपको एक सेल या टिश्यू लाना है। यू हैव टू प्लेस दैट सेल इन ए कल्चर मीडियम। व्हाट इज ए कल्चर मीडियम? द मीडियम इन विच वी प्रोवाइड द सेल विद ऑल द important essential materials for reproduction or division. तो वो सेल डिवाइड करेगी वहां पर, इट विल फॉर्म an undifferentiated mass of cells. That mass of cells is called callus. ठीक है, ये जो undifferentiated mass of cells है वो बन गया callus. Now, what is the next step? Then you have to transfer this callus to another medium. उसके बाद आपको इस callus को next medium में डालना है। उस callus
में जो सेल्स है, अब उनको हम नेक्स्ट मीडियम में डालेंगे। उस मीडियम में क्या प्रोवाइड करेंगे? वी विल प्रोवाइड देम विद growth hormones and which are important for differentiation and growth of the cells. हम उनको वहां पर प्रोवाइड करवाएंगे growth hormone which are important for differentiation and growth of cells. तो उसकी वजह से क्या है, ये सेल्स डिफरेंशिएट होना स्टार्ट हो जाएगी। जब ये सेल्स डिफरेंशिएट होना स्टार्ट हो जाएगी, ये स्मॉल सैपलिंग्स बनाएंगे, वहां पर प्लांटलेट्स बनाएंगे। तो क्या फाइनली आपको इन प्लांटलेट्स को निकाल के आपको पॉट्स में रखना है या नर्सरी बेड्स में रखने हैं, where they will develop into large plants. वहां पर वो large plants बना लेंगे। ठीक है, once more I will revise this. In tissue culture, what you have to do, you have to get some cells or tissues from the growing tips of the plants and place them in artificial culture media, where this cell will be provided with all the materials which are important for division of the cell. So in this culture media, cell will divide multiple times and it will form an undifferentiated mass of cells. We call that mass of cells as callus. After that, you have to transfer that callus into another medium, where we will provide this callus with hormones which are responsible for growth and differentiation. The cells will start differentiating. They will start producing small plantlets. Finally, you have to transfer those plantlets to nursery beds or pots, where they will develop into large plants. ठीक है, इसका एक एडवांटेज है टिश्यू कल्चर का कि इससे डिजीज फ्री प्लांट्स प्रोड्यूस कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि आप उस प्लांट से लाओगे जिसमें कोई डिजीज ना हो, जिसमें ज्यादा प्रोडक्शन होगी, उसकी उन सेल्स को कल्चर करोगे। ठीक है, और ये क्विक मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन है, इससे बहुत कम टाइम में बहुत ज्यादा प्लांट्स आप बना सकते हैं। ठीक है, आई होप कि टिश्यू कल्चर आपको क्लियर हो गया। नेक्स्ट वन एंड फाइनल इज द व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ वेजिटेटिव प्रोपगेशन। ठीक है, वेजिटेटिव प्रोपगेशन की क्या इंपॉर्टेंस है? सबसे पहले, जो मैंने पहले भी कहा, वेजिटेटिव प्रोपगेशन इट्स द ओनली मेथड ऑफ प्रोपगेशन इन प्लांट्स, सीडलेस प्लांट्स व्हिच डू नॉट प्रोड्यूस सीड्स, जैसे कि बनाना है, ठीक है, या ग्रेप्स है। तो वो प्लांट्स वो हैव लॉस्ट द कैपेसिटी टू प्रोड्यूस द सीड्स, their only method of propagation is vegetative propagation. Second one, we can rapidly produce large number of plants. It's a rapid method of multiplication. बहुत कम टाइम में बहुत ज्यादा प्लांट्स आप ग्रो कर सकते हैं। नेक्स्ट, disease free plants can be produced with this because you will try to propagate those plants which are disease free. तो इससे आप disease free plants propagate कर सकते हैं। सेकेंड, नेक्स्ट वन, जेनेटिक यूनिफॉर्मिटी रहती है। क्यों? क्योंकि it's a method of asexual reproduction. There is no chances of variation, so the new offshoots will be genetically as well as morphologically similar to their parents. ठीक है, and the qualities of the plant can be preserved for long time. अगर आप वेजिटेटिव प्रोपगेशन से करोगे तो जो क्वालिटीज ऑफ प्लांट वो बहुत देर तक प्रिजर्व कर सकते हैं, लेकिन अगर उसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो उसकी वजह से वेरिएशंस आएगी, तो मे बी वो चेंजेस आ सकते हैं। तो these are the advantages of vegetative propagation. I hope कि spore formation and vegetative propagation आपको क्लियर हुआ होगा। अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन है, प्लीज राइट इन द कमेंट एंड ऑल्सो राइट कि आपको वीडियो कैसा लगा। सो आज के लेसन में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट लेसन में। टिल देन, गुड बाय, टेक केयर एंड गुड नाइट।